Greetings student, welcome to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to start the topic using debit and credit of chapter 3rd, recording of transaction. Right student, we have already discussed the some of the topic of this same chapter in previous video. For example, source document and voucher. If you not watch the previous video, first watch the previous video and then come to this topic. Right student? Now the debit and credit. What is the meaning of debit and what is the meaning of credit? Which transactions write in the book in debit side and credit side of the account? These are complicated questions. So first we have to know the meaning of debit and credit, then write the entry in the books of recording. Right? The first meaning of debit and credit. All accounts are divided into two sides. The left side of the account is arbitrary known as debit side. जो लेफ्ट साइड होगी अकाउंट की उसको हम बोलते हैं कि डेबिट साइड. राइट. द राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. Right, we have already stated every transaction involves give and take aspect कि हर ट्रांजेक्शन जो है गिव और टेक एस्पेक्ट पे होगा. राइट, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री कॉन्सेप्ट. इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन एटलीस्ट इफेक्ट टू अकाउंट्स. मिनिमम जो है 2 अकाउंट्स को जरूर इफेक्ट करेगा हर ट्रांजेक्शन. राइट. When recording each transaction, the total amount debited must be equal to the total amount credited. कि जो है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही हम जो अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो दोनों साइड में क्या होगा, इक्वल होता है. और वो क्यों होता है? बिकॉज वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम. राइट. In accounting, the terms debit or credit indicate whether the transaction are to be recorded on the left side and right hand side of the account. Right? In the simplest form, an account looks like the letter T. Account shape T shape. Because of the T shape, why we call T shape? Because the T format has a left side and right side for recording increasing or decreasing in the item. T format has a left side और right side जो है हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे increasing और decreasing of the item. This help in ascertaining the ultimate position of each item at the end of the accounting period. For example, if it is an account of a customer, all goods sold shall appear on the left side, that is debit side of the customer account, and all payment received on the credit side. Right? कि मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन होगा गिव और टेक पॉलिसी पर होगा. ट्रांजेक्शन राइट साइड में और जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड रिकॉर्ड होंगी. जैसे कस्टमर को गुड्स सेल की तो एंट्री क्या बनी कि हमारी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राइट. तो डेबिट साइड ऑफ दी जो है कस्टमर के और जो है हमारी जो भी जो डेटर है उससे में पेमेंट रिसीव होगी तो डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट और जो जितनी भी पेमेंट जो रिसीव होगी गुड सेल की वो एंट्री हमारे सेल्स अकाउंट में भी होगी. राइट. और सेल्स अकाउंट में क्या होगी, वो क्रेडिट होगी. राइट. द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ द टू साइड called balance shall reflect the amount due to the customer. In T-shape account, the left side is called debit, often जो abbreviated as DR dot, जो है शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है डेबिट के लिए DR dot, and right side is known as credit, abbreviated जो फॉर्म होगी उसकी CR dot. राइट स्टूडेंट, कि हर अकाउंट्स को जो है 2 पार्ट्स में जो डिवाइड होगा और उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो आर्बिट्री जो है DR डॉट और राइट साइड जो क्रेडिट साइड होगी उसको हम जो है CR डॉट के जो है नाम से जो है राइट करेंगे. राइट. इन एब्रीवेटेड फॉर्म डेबिट को DR और क्रेडिट को CR नोट करने के बाद
जो हम एंट्री नोट करेंगे, राइट। और जो ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी शेप की तरह जो हमारा अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट की जो हमारी फॉर्मेट को हम रीड करेंगे वो टी शेप होगा, राइट। नाउ द अकाउंट को भी हम जो है एब्रीवेटेड जो फॉर्म में जो राइट करते हैं, फुल जो स्पेलिंग हमें नोट करने की नीड नहीं होती, तो ACCOUNT नो नीड टू राइट, हम जो है अकाउंट को भी A/C जो है नोट करके राइट कर सकते हैं। नाउ कम टू द रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज of recording the transactions: assets, liability, capital, expenses, losses, and fifth one is revenues and gain. कि in order to decide when to write the debit side of the account and when to write the credit side of the account, it is have two approaches. मीन्स देयर आर टू अप्रोचेज फॉर रिकॉर्डिंग कि किस ट्रांजेक्शन को आप डेबिट साइड नोट करोगे और किस ट्रांजेक्शन को आप क्रेडिट साइड नोट करोगे। ये जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास टू अप्रोच होती हैं रिकॉर्डिंग करने की, राइट स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और सेकेंड वन इज इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम which have been discussed in next video, right student। इंग्लिश अप्रोच ही हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे अमेरिकन अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंट जो है कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, राइट। तो डबल एंट्री सिस्टम की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में रीड करेंगे, राइट। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, या अमेरिकन अप्रोच, द रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट, और फॉर दिस पर्पज ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज इन द अमेरिकन अप्रोच। फर्स्ट इज एसेट अकाउंट, सेकेंड इज लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट जिसको आप ओनर इक्विटी भी बोल सकते हो, राइट। And fourth is revenue and gains, and fifth one is losses and expenses account, right. While discussing an accounting equation, we have studied that there is increase or decrease in one account, there will be equal increase or decrease in another account। कि अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हमने की उसमें क्या किया कि जब भी कोई अकाउंट हमारा जितनी अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो दूसरे अकाउंट पर भी इफेक्ट होता है, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स कैन बी ऑब्टेन। फर्स्ट वन इज एसेट, राइट। एसेट्स को फर्स्ट हम जो डिक्टेट करेंगे कि एसेट्स अकाउंट को कब आपने डेबिट करना है और कब आपने जो है उसको क्रेडिट करना है, राइट। When there is increase in the amount of assets, such as increase in recording in the debit side of the asset account, and there is reduction of the assets recorded in the credit side of the asset account, right। कि अगर assets हमारी assets का debit balance होता है स्टूडेंट, assets have always debit balance, और जब जब increase होगी आपके क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन में एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही होगी तो वो डेबिट होगी। फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज, तो वो डेबिट साइड में नोट करेंगे, और फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर सेल्स बोल रहे हैं तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, व्हेन इट इंक्रीज इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, and when it decrease it will be recorded in credit side, right student। And for example, if a firm purchase furniture of rupees 5,000, it will be recorded in the debit side of furniture account, right। Since furniture has increased by this amount, right। If a firm sells furniture of rupees 2,000, the reduction will be recorded in the credit side of the
फर्नीचर अकाउंट। राइट स्टूडेंट, कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, व्हेन इट इंक्रीज it will be recorded on the debit side, means left side, and when it decrease it will be recorded on the credit side, means जो है right side. Right student, now come to the next, liability account. Liability account, when there is increase in the amount of a liability, such as increase will be recorded on the credit side of the liability account. Liability have always credit balance. When it increase, it will be recorded in credit side, means right side of the account, right? Or opposite means when reduction in the liability, it will be recorded on the debit side of the liability account. For example, if a firm borrows 10,000 from Gobind, right student, the Gobind account will be credited rupees 10,000, right, is now owing to him. When loan is repaid, the account will be debited. कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट साइड में नोट किया, जब उसे पेमेंट कर दी वो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो उसे हमने क्या किया, डेबिट साइड में नोट कर दिया। राइट स्टूडेंट, तो इस साइड की लाइबिलिटी क्या है, हमेशा जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। व्हेन इट इंक्रीज राइट इन क्रेडिट साइड, when it decrease write in debit side. Got this point student? Assets always debit balance and liability have always credit balance. Now come to the next, capital account. Capital account means an increase in the capital is recorded on the credit side and decrease in the capital recorded on the debit side. राइट स्टूडेंट, कैपिटल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, जब इंक्रीज होगी राइट करेंगे क्रेडिट साइड में, जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो राइट करेंगे जो है डेबिट साइड में ऑफ द अकाउंट. राइट स्टूडेंट, सपोज द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस, द कैपिटल अकाउंट विल बी credited. Similarly, the proprietor withdrawn some money for his personal use, that is makes drawing, the capital account will be debited. Capital always have credit balance same as liability. When it increase recorded in credit side of the account, when it decreases it will be recorded on the debit side of the account. Right student, now come to the fourth, that is revenue and gains. Revenue or gains, all increase in the gains and income are recorded on the credit side of the account. जो भी हमारा कंसर्न अकाउंट होगा इनकम से रिलेटेड, उसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी जब जब हमें इनकम जो है रिसीव होगी या गेन रिसीव होंगे. ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न अकाउंट, राइट, कंसर्न इनकम अकाउंट, एज इट लीड्स टू इंक्रीज इन द कैपिटल. कि जब रिवेन्यू अर्न होते हैं, गेन होती हैं, फर्म के अंदर इनकम होती है, तो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है. ऑन द कंट्री, इफ देयर इज रिडक्शन इन एनी गेन और इनकम, द अमाउंट कंसर्न विल बी, द अकाउंट कंसर्न विल बी डेबिटेड एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन द कैपिटल. हमेशा जो रिवेन्यू और गेन का भी क्रेडिट बैलेंस होगा, जब जब ये इंक्रीज होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, और जब जब ये डिक्रीज होंगे इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिलेटेड अकाउंट, कंसर्न अकाउंट ऑफ द इनकम. राइट स्टूडेंट, इट मीन्स रिवेन्यू भी क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस है, और लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस है. नाउ कम टू द फिफ्थ, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज. एक्सपेंसेज और लॉसेज, ऑल इंक्रीज इन द लॉसेज और एक्सपेंसेज are recorded on the debit side of the concerned expenses account. It leads to decrease in the capital.
राइट स्टूडेंट, कि इनका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ऑन द कंट्री एक्सपेंसेस और जो भी लॉसेज में रिडक्शन है, डिक्रीमेंट है, डिक्रीज हो रहे हैं जब वो, इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड, राइट। तो इट मीन्स लॉसेज और एक्सपेंसेस हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, राइट स्टूडेंट, कि लॉसेज और हमारा जो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस और एसेट्स का डेबिट बैलेंस, और 3 मीन्स लाइबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू और गेन, इनके जो हमारे पास कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस, राइट। द रूल गिवन मे बी समराइज एज फॉलोज। अब जो ये हमने रूल डिस्कस किया उसके बेस पर जो कंक्लूजन हुआ उसको हम समराइज फॉर्म में किस टाइप से रीड करेंगे, वो फर्स्ट, 2 fundamental rules are required to record the changes in these accounts. First one is for record changes in assets and expenses और losses भी बोल सकते हो, दोनों का सेम रहेगा। Increase in assets is debited and decrease in assets is credited. Increase in expenses, losses is debited and decrease in expenses, losses is credited. राइट स्टूडेंट, कि एसेट एक्सपेंसेस या लॉसेज पर सेम अप्लाई होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फॉर सेकेंड, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल, रिवेन्यू और गेन्स, जो इन तीनों के ऊपर जो हमारा ये रूल अप्लाई होगा कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, कि लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज होगी वो क्रेडिट होगी, जब जब डिक्रीज होगी वो डेबिट होगी। एंड सेकेंड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज इन रिवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रिवेन्यू गेन इज डेबिटेड। राइट स्टूडेंट, कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर जो एक रूल फॉलो होगा कि इनका डेबिट बैलेंस होता है, जब जब ये इंक्रीज होंगे दैट विल बी राइट इन दी डेबिट साइड, और जब जब ये डिक्रीज होंगे इट विल बी राइट इन दी क्रेडिट साइड। अब आपको रूल जो है क्लियर होगा, बिल्कुल अंडरस्टैंड है ना। नेक्स्ट, कि लाइबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू पर एक रूल फॉलो होगा, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब जब ये इंक्रीज होंगे इनको हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो इनको डेबिट साइड में नोट करेंगे। राइट स्टूडेंट, द डेबिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन फेवरेबल थिंग्स, कि जो हमने डिस्कशन की ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूड दैट द टर्म डेबिट शुड नॉट बी टेकन टू मीन्स फेवरेबल थिंग, it may represent favorable or unfavorable, means increase or decrease depending on the nature of an account. राइट स्टूडेंट, कि डेबिट हम कहें कि हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन डेबिट होंगे, जो अकाउंट डेबिट होंगे वो क्या है, फेवरेबल थिंग है, नो, वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और इनफेवरेबल भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग नेचर भी हो सकता है और डिक्रीजिंग नेचर भी हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है अकाउंट की नेचर के ऊपर। जैसे एसेट्स का नेचर डेबिट, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट, लॉसेज का नेचर डेबिट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, गेन, इन चारों का नेचर क्या है, क्रेडिट। राइट, कि इंक्रीज और डिक्रीज वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ कंसर्न अकाउंट। राइट, कि एक्सपेंसेस और एसेट्स के अकाउंट बनाओगे तो जब जब इंक्रीज होगे वो डेबिट करोगे। इन द केस ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस डेबिट मीन्स इंक्रीज एंड क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, एंड लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, डेबिट रिप्रेजेंट डिक्रीज एंड क्रेडिट रिप्रेजेंट इंक्रीज। राइट स्टूडेंट, these are the rules of debit and credit according to modern approach, according to American approach. राइट स्टूडेंट, इसको जो हम एक एग्जांपल से भी करेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट के जो रूल किए हैं, जो एनालिसिस हमने लास्ट में फ्रेम भी किया है, तो अब इसको हम जो है कैसे जो है नोट डाउन करेंगे अकाउंट्स में। राइट, द फर्स्ट, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
ये जो ट्रांजैक्शन हुआ कि रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कम इन द बिजनेस, वंस जो तरफ ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, द ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस कैश ऑन वन एंड, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट मिनिमम टू अकाउंट्स। तो वन जो ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट कर रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, वन एस्पेक्ट, एंड साइड बाय साइड इसी जो कैश को जो ला रहा है बिजनेस में वो कैपिटल के लिए ला रहा है, तो इट मीन्स कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज ऑन दी अदर एंड्स, राइट। इंक्रीज इन एसेट्स और साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, राइट। तो एसेट्स व्हेन इंक्रीज आर डेबिटेड एंड लाइबिलिटी व्हेन इंक्रीज इट विल बी credited. The record the transaction with debit to cash account and credit to Rohit's capital account. टू अकाउंट्स जो है मेंटेन होंगे, वन इज कैश अकाउंट एंड सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट जब बनाए जाएंगे तो कैश अकाउंट की राइट करेंगे हम डेबिट साइड में, क्योंकि कैश क्या है, एसेट है। हमारा जो कैश क्या है, एसेट्स है। अगर आपको ये नहीं मालूम कौन सी एसेट्स है कौन सी लाइबिलिटी, तो एक बार जो टर्म्स वाली जो वीडियो अच्छे से देखें, राइट स्टूडेंट। और कैपिटल जो है आप राइट करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंक्रीजमेंट जो इंक्रीमेंट इन कैपिटल ऑलवेज राइट इन दी क्रेडिट साइड, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन इफेक्ट टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। Now come to the next. Open a bank account with an amount of rupees 4,80,000. Analysis of transaction. The transaction increase the cash at bank on the one hand. जब बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट। और जो कैश बैलेंस था आपके पास वो डिक्रीज हो जाएगा ऑन दी अदर एंड। It means the transaction increase the cash at bank on one end and decrease cash in hand on the other end. Increase in assets are debited, right? जब asset increase होगी it will be debited. It means right debit side. Assets increase, asset decrease हुई, बैंक बैलेंस increase हुआ, तो बैंक वाले कॉलम में तो डेबिट साइड में और एसेट्स वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में। Two accounts are affected. First is cash account and second is bank account. No other account will be affected by this transaction. Only two account, cash account और bank account. Cash account जो इफेक्ट हुआ तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है। बैंक भी एसेट है हमारी, बट ये क्या है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। बैंक में वैसे हमारा पर्सनल रूल अप्लाई होता है, राइट। तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है कैश अकाउंट और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बैंक अकाउंट के जो डेबिट में नोट डाउन होगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड, ब्रोट फर्नीचर, bought furniture for rupees 60,000 and issue check for the same। कि फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर खरीदा 60,000 का और उसकी पेमेंट कैसे की है, चेक से की है। उसके बदले में क्या दिया है, चेक दिया है। मीन्स चेक देने से जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट से होगी, कैश अकाउंट से नहीं करनी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। तो फॉर दिस ट्रांजेक्शंस टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। फर्स्ट फर्नीचर मीन्स एसेट अकाउंट एंड सेकेंड बैंक अकाउंट मीन्स हमारे एसेट अकाउंट। दोनों ही जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो एसेट साइड पर हो रहे हैं, राइट। नो डिफरेंस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंट चाहे एसेट साइड पे इफेक्ट करें चाहे लाइबिलिटी साइड पर इफेक्ट करें, पर मिनिमम जो है टू अकाउंट्स जरूर अफेक्टेड होंगे। तो दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीज फर्नीचर ऑन वन एंड एंड डिक्रीज बैंक ऑन दी अदर एंड बाय रुपीज 60,000। Increase in assets are debited and decrease in assets are credited। इसलिए फर्नीचर अकाउंट में तो डेबिट साइड में नोट है और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में नोट है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट कि दोनों ही एसेट अकाउंट है। जब इंक्रीज हुए तो राइट इन दी डेबिट साइड एंड डिक्रीज होंगे तो राइट इन दी क्रेडिट साइड। और फर्नीचर
and bank account are affected by this transaction. Got this point, student? Now come to the fourth. Bought plant and machinery from Ramji Lal for the business for rupees 1,25,000 and advance of rupees 10,000 cash is given. कि प्लांट और मशीनरी परचेज की, इट मीन्स एसेट्स कम इन द बिजनेस, राइट, बट सेम टाइम 10,000 कैश इज गिवन, इट मीन्स कैश बैलेंस रिड्यूस्ड, राइट. एक बार तो क्या हुआ कि मशीनरी परचेज की तो मशीनरी इंक्रीज हुई बट कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, इट मीन्स, राइट. और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो इससे थर्ड अकाउंट भी इफेक्ट होगा कि ओनली प्लांट और मशीनरी जो परचेज किया 125 की बट ओनली 10,000 कैश पेमेंट हुई है, इट मीन्स 1,15,000 इज रिमेनिंग. दैट इंक्रीज लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर मेंटेन फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शंस. कि इस ट्रांजेक्शन से प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुई 1,25,000, कैश डिक्रीज हुआ 10,000 से, और लाइबिलिटी जो इंक्रीज होगी मीन्स मैसेज जो रामजी लाल हैं वो क्रेडिटर बन गए बाय रुपीज़ 1,15,000, राइट. तो इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड वे डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग. और द अदर एंड इंक्रीज लाइबिलिटी आर क्रेडिटेड द रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विद डेबिट ऑफ फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ कैश एंड रामजी लाल अकाउंट. क्योंकि क्रेडिटर बने हैं तो रामजी लाल अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट में जो है हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हमारी एसेट डिक्रीज हुई है. प्लांट और मशीनरी अकाउंट है जो वो इंक्रीज हुआ है तो इट विल बी डेबिटेड, राइट स्टूडेंट. हियर इन दिस ट्रांजेक्शन 3 अकाउंट्स आर इफेक्टेड. फर्स्ट इज कैश अकाउंट, सेकेंड रामजी लाल अकाउंट, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. यहाँ पर जो हमारा कैश और रामजी लाल का अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, राइट, बट प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. तो यहाँ पर चाहिए 2 अकाउंट हमारे जो है क्रेडिट हो रहे हैं बट 1 अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है और दोनों अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो क्या होगा, सेम होगा. दोनों का जो बैलेंस है 1,25,000 ही रहेगा. Got this point, student? Now come to the fifth. Goods purchased from Sumit Traders for rupees 55,000. Goods purchased from Sumit Trader. It means creditor will maintain from these transactions. Cash में payment नहीं हुई. Name is given. When name is given, it means credit transaction. When amount paid in cash or check, it means cash transaction. But when name or cash both word are given, then cash transaction will be preferences. Means preferences will be given to cash. तब हम जो है नेम को जो इग्नोर करेंगे इट मीन्स वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, वो कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे जब कैश और एज वेल एज नेम दोनों ही आपको गिवन हो ट्रांजेक्शन में. नाउ द एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस. द ट्रांजेक्शन इंक्रीज परचेज, गुड्स परचेज किए हैं, परचेज इंक्रीज हो गई, इट मीन्स एक्सपेंसेज हुए, एंड इंक्रीज लाइबिलिटी जो कि मैसेज सुमित ट्रेडर एज क्रेडिटर बन गया बाय रुपीज 55,000. इंक्रीज इन एक्सपेंसेज आर डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिटेड. कि आपके एक्सपेंसेस डेबिट होंगे क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं. आप एक्सपेंसेज में कौन सा अकाउंट बनाओगे, परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट ऑलवेज कम इन नॉमिनल अकाउंट. इनके बारे में जो है पूरी जो डिस्क्रिप्शन है टर्म ऑफ अकाउंट्स के अंदर करेंगे. और सुमित ट्रेडर अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी राइट इन क्रेडिट साइड, राइट. द एनालिसिस क्या है इस ट्रांजेक्शन का कि इट इफेक्ट 2 अकाउंट्स, परचेजेस एंड सुमित ट्रेडर अकाउंट. परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और सुमित ट्रेडर अकाउंट का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि परचेजेस अकाउंट पर एक्सपेंसेस नेचर अप्लाई होगा और सुमित ट्रेडर अकाउंट पे क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी नेचर अप्लाई होगा. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू 6th.
गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू राजनी एंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000 कि 25,000 वाली गुड्स जो है राजनी जो एंटरप्राइजेस को सेल की गई 35,000 में। अब यहाँ जो ट्रांजैक्शन है, गुड्स की प्राइस 25,000 की थी बट सेल की 35,000 में, तो प्रॉफिट भी हो रहे हैं, राइट। इट मीन्स दैट अकाउंट इफेक्ट मोर देन दैट ट्रांजैक्शन इफेक्ट मोर देन 2 अकाउंट्स। नाउ फर्स्ट इज गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू जो है राजनी एंटरप्राइजेस, तो ये जो है सेल्स अकाउंट एंड राजनी एंटरप्राइजेस बोथ आर गिवन, बट सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम अर्न कर रहा है, और एंटरप्राइजेस का अकाउंट क्या होगा, वो भी क्या होगा कि क्रेडिटर मेंटेन हो रहे हैं, डेटर मेंटेन हो रहे हैं। डेटर जो राजनी को सेल किए गए, तो यहाँ पर गुड्स कॉस्टिंग सेल हुई है तो डेटर मेंटेन होंगे, और डेटर जब जब इंक्रीज होंगे वो हमारे जो है रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड में, कि एक तरफ तो हमारी क्या है कि स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो डेबिट हो गई, रिवेन्यू इंक्रीज हो गए, राइट। और सेम क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है कि इंक्रीज जो हमारे डेटर बढ़ गए, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द जो है एसेट अकाउंट, राइट। तो हमारे जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो जाएंगे सेल्स का और हमारा डेटर अकाउंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पेड फॉर मंथली स्टोर रेंट ₹25,000 इन कैश। मंथली स्टोर का रेंट पे किया 2,500 इन कैश। एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, द पेमेंट ऑफ रेंट इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस नेचर का क्या रूल था, डेबिट। एक्सपेंसिव नेचर था तो उसका जो डेबिट नेचर था, राइट। विच डिक्रीज कैपिटल दस आर रिकॉर्ड्स एज डेबिट्स, और क्रेडिट कैश टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन एसेट्स, कि जब रेंट पे होगा तो कैश डिक्रीज हुआ, राइट स्टूडेंट। कैश पर भी क्या है, डेबिट का ही नेचर है क्योंकि कैश इंक्लूड इन एसेट साइड, एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स में जब जब इंक्रीमेंट होता है वो डेबिट होती है, जब डिक्रीमेंट होता है तो क्रेडिट होगी। इट मीन्स 2,500 राइट इन कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट के डेबिट में, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन, पेड ₹5,000 एज सैलरी टू द ऑफिस एम्प्लॉयज। एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरी इज एन एक्सपेंस और विच डिक्रीज द कैपिटल आर रिकॉर्डेड एज डेबिट्स, कि कैपिटल जब जब हमारी डिक्रीज होगी बिजनेस में वो डेबिट होगी। क्रेडिट कैश टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन एसेट, कि हमारी जब जब पेमेंट होगी तो यहाँ पर क्या थी, सैलरी पेमेंट होगी, कैश की फॉर्म में हो रही है, सैलरी एक्सपेंस है राइट इन डेबिट साइड, और कैश जो है बैलेंस नेचर डेबिट है, तो व्हेन इट डिक्रीज इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो इस टाइप से जो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 9th ट्रांजेक्शंस। 9th इज रिसीव्ड चेक इन फुल पेमेंट फ्रॉम राजनी एंटरप्राइजेस एंड डिपॉजिट सेम इनटू बैंक, कि जो राजनी एंटरप्राइजेस को गुड्स सेल की थी उनकी अमाउंट रिसीव्ड हो गई और अमाउंट चेक फॉर्म में रिसीव हुई है, राइट। और ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। Here in this transaction 2 accounts are affected. First is bank account, second Rajni Enterprises account. पेमेंट रिसीव हुई है, इट मीन्स हमारे जो है डेटर से रिकवरमेंट हो गई है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन दी क्रेडिट साइड। जो डेटर का अकाउंट होगा वो क्रेडिट साइड नोट हो जाएगा और बैंक अकाउंट के डेबिट में नोट हो जाएगा। डेटर डिक्रीज हो जाएंगे और हमारी पेमेंट जो है बैंक कॉलम में आ जाएगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कि व्हेन पेमेंट रिसीव फ्रॉम जो है डेटर, राइट। एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी शोन बोथ साइड ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस, जो कि हम इस टाइप से जो पुट करेंगे 1 by 1, राइट। कि कौन से अकाउंट को आपने डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है, तो वो डिपेंड करता है रूल्स के ऊपर, नेचर के ऊपर। नेचर
जो हमने अकॉर्डिंग टू अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच किए हैं, और दैट नेचर इज 5 टाइप्स. एसेट नेचर हैव डेबिट, लाइबिलिटी नेचर हैव क्रेडिट. राइट स्टूडेंट? तो इसमें कैपिटल नेचर क्रेडिट, इनकम या रिवेन्यू नेचर क्रेडिट, और एसेट और एक्सपेंसेस हैव ऑलवेज डेबिट नेचर. और नेचर के अकॉर्डिंग ही हम किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? तो दीज आर दी रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट. दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, बिकॉज according to these rules we decide which account is debited and which account is credited. I hope you all understand the rules of debit and credit for recording the transactions. Right student? In next video we will meet with next topic. Thank you. Have a nice day.